میگا منی لانڈرنگ کیس میں آصف زرداری کو 19 اگست کو دوبارہ پیش کیا جائے گا، جبکہ فریال تالپور کے جسمانی ریمانڈ میں 7 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ 29 جولائی کو دوبارہ عدالت میں لایا جائے گا۔ سماعت کے دوران احتساب عدالت میں اس وقت صورتحال سامنے آئی جب نیب تفتیشی آفیسر آصف زرداری کے 7 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ اس پر لطیف خوسر ایڈوکیٹ نے کہا کہ آپ 14 دن کا ریمانڈ لے لیں، روز آنا جانا مناسب نہیں۔ تفتیشی آفیسر محمد علی نے جواب دیا، میرا کام مختصر ہے، میں 14 دن کا ریمانڈ لے کر کیا کروں گا۔ عدالت نے آصف علی زرداری سے حاضری لگوا کر سماعت 19 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ بات کریں گے محمد علی سے، اب مزید بتائیے گا سماعت ملاقات کی اجازت دی جائے۔ شکریہ۔ احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافی نے آصف علی زرداری سے سوال کیا، عمران خان کہتے ہیں امریکہ سے واپسی پر آپ کو جیل میں ملنے والی سہولیات لیں گے۔ آصف زرداری نے جواب دیا، کون سی سہولتیں، انہیں سہولتیں دی کون سی ہیں؟ ہم تو پہلے بھی بیرکوں میں رہتے رہے ہیں۔ واپس ملیں گے۔ وزیر اعظم کی امریکہ میں جلسہ عام سے خطاب، کہا پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن دنیا میں منفرد ہے، مائنڈ سے تبدیل کر کے ملک کو نسخاری کی جانب لے جا رہے ہیں، پاکستان کو تبدیل ہوتا دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ پوچھتے تھے کہاں ہے نیا پاکستان، آپ کے سامنے نیا پاکستان بن رہا ہے۔ عمران خان کہ ہمارا کمزور تعلیمی نظام کے بچوں کو نہیں آنے دیتا۔ عمران خان نے اپوزیشن کو پاڑے ہاتھوں لیا، کہا دنیا سے ادھر ہو جائے، این آر او کسی کو نہیں ملے گا۔ عدالت فیصلہ سابق حکمران کہتے ہیں کیوں نکالا۔ اور میرے پاکستانیوں، یہ ملک ہے، یہ ہر سال عدالت کرتی ہے سارے کیس ان کے اوپر پرانے ہیں، ہم نے کوئی کیس نہیں کیا، ہم نے صرف اداروں کو آزاد کیا ہے، ہم نے صرف نیب کو آزاد کیا ہے، ہم نے ایف آئی اے کو آزاد کیا ہے۔ جو ملک کا سربراہ ہے وہ کون کو جواب دے؟ تو فضل الرحمان، دوسری طرف سیکولر بلاول بھٹو، وہ بھی ساتھ مل گیا، پھر نون لیگ جس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے وہ بھی ساتھ ہے، سب اکٹھے ہیں۔ ان کا صرف ایک مقصد ہے، آصف زرداری آپ کو بھی جیل میں رکھیں گے، نہ ٹی وی ہوگا، نہ ایئر کنڈیشن ہوگا، بڑا آسان ہے جیل سے نکلنا، پیسہ واپس کرو، ہم جیل سے آپ کو نکال دیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا تھوڑا مشکل وقت ہے، یہ ہمارا مشکل وقت ہے، 4 مہینے 6 مہینے سال تک رہے گا، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو پاکستان کو نکال کے دکھائیں گے، اس ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے۔ اور اگر سب مل کے تھوڑا تھوڑا ٹیکس دیں، کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان کو ان قرضوں کی دلدل سے نکالنا۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर पर अपोजिशन रहनुमाओं ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अफसोस, वज़ीर-ए-आज़म बैरून मुल्क में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कंटेनर से नहीं उतरे। इमरान खान लीडर नहीं हुक्मरान है। अगर हुकूमत अपोजिशन का किरदार अदा करेगी तो मुल्क कौन चलाएगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान साहब आप अमेरिका में पाकिस्तानियों को ये भी बता देते कि आज मुल्क में रोटी, कारोबार, सनत, रोजगार और आवाज सब बंद है। ये भी बताते कि 10 माह में मुल्क के साथ क्या जुल्म किया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, बड़े अफसोस की बात है, उन्होंने मुल्क से बाहर तकसीम की बात की। आपकी जो दुश्मनियां हैं घर में रखें, कराएं और नाम रोशन करें। वो इस तरह यहाँ बातें, घर की बातें, कितनी इनकी दुश्मनियाँ हैं वो वहाँ उजागर कर रहे हैं। तो ये बड़ी ही अच्छी, और मुझे बहुत शौक हुआ देख के कि आपको जो भी दुश्मनियाँ हैं आप अपने घर में रखें। वहाँ जाके इस लेवल पर आपने वॉशिंगटन में जाके अपने घर की तकसीम और फला चोर है, फला डाकू है, खाक इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अगर प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का अमेरिका में जलसा कैपिटल वन एरिना में कनाडा और अमेरिकी रियासतों से खिलाड़ियों का जम में गफीर उमड़ आया। स्टेडियम के बाहर लोगों की तवील कतारें, एरिना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने साबित कर दिया आप जिंदा कौम हैं। दिल्ली का सुनामी अमेरिका जा पहुंचा। कैपिटल वन एरिना में खिलाड़ी ही खिलाड़ी इकट्ठे हो गए। 20,000 से ज्यादा अफराद जलसे में शिरकत के लिए कनाडा और अमेरिका की तमाम रियासतों से पहुंचे। शुरका का जोशो खरोश दीदनी था। सब्ज हिलाली परचम लहराए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से वाशिंगटन की फिजाएं गूंज उठी। स्टेज सजा, डीजे सिस्टम भी मुतहर्रिक रहा। सेनेटर फैसल जावेद ने स्टेज की मेजबानी की। नया पाकिस्तान, पाकिस्तान आपके बड़ों ने बनाया, आपके आबा और अजदाद ने पाकिस्तान बनाया तहरीक पाकिस्तान की शक्ल में। और आज मैं ये कह रहा हूं कि नया पाकिस्तान भी पाकिस्तानी बनाएंगे, कोई और नहीं बना सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जिंदगी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। Changed me in the way that it made me ask the question, what am I doing here? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पाकिस्तान कम्युनिटी से खिताब ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तानी सार्फिन ने कहा कि इमरान खान के अमेरिका आने से ऐसा महसूस हुआ जैसे पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो किसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का फख्र और उनके दिलों के बादशाह हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब दुनिया भर में टॉप ट्रेंड बनकर गर्दिश करता रहा। लाखों सार्फिन ने खिताब के क्लिप्स और तस्वीर को शेयर किया। सोशलिस्तान वालों ने इमरान खान को असल बादशाह करार दे दिया। इमरान खान हमारे दिलों के बादशाह हैं। किसी ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान में बहुत जल्द सब बेहतर होगा। हमें अपने लीडर पर भरोसा है। एक सारिफ ने लिखा कि इमरान खान मुंतखब वजीर आजम है, ना कि सिलेक्टेड। कई ने कहा कि पाकिस्तान एक बेहतर लीडर के हाथों में है, तो एक ने नवाज शरीफ की तस्वीर शेयर करके तनकीद की। वज़ीर आज़म इमरान खान आज व्हाइट हाउस के मेहमान बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से 1-on-1 मुलाकात होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात से मुतालिक अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। दूसरी मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी। वज़ीर आज़म कल अमरीकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस और कैपिटल हिल में खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड बैंक के सदर डेविड मेलपास से मिले। मुआशी और इक़्तिसादी मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा अमेरिका। आज व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मेहमान होंगे। पहले 1-on-1 मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दूसरी नशिस्त कैबिनेट रूम में होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात। मुआशी और इक़्तिसादी मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। डेविड मेलपास को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद की। इमरान खान ने अमरीकी ताजरों और सरमाएकारों को पाकिस्तान में तिजारत की पेशकश भी कर दी।
23 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म एक मसरूफ दिन गुजारेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो अमरीकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुलाकात के अलावा कैपिटल हिल में पाकिस्तान कॉकस से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर नैन्सी पेलोसी से भी मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पेंटागन में अहम मुलाकातें करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका के कायम मकाम वज़ीर दिफा से मिलेंगे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट में कहा है, आर्मी चीफ अमरीकी हम मनसब से भी मुलाकात करेंगे। ये मुलाकातें वज़ीर आज़म की व्हाइट हाउस मुलाकात के बाद होंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ नैब इंक्वायरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। आईनी दरखास्त में नैब, विफाक, परवेज खटक, फिरदौस आशिक आवान, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आर्टिकल 25 के तहत कानून सब के लिए बराबर और सब पर यकसा लागू होता है, लेकिन नैब खामोश है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कबायली अजला के इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों को इंतखाबी अखराजात के गोशवारे 30 जुलाई तक मुतालिका रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाने की हिदायत कर दी है। खवातीन और गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार 30 जुलाई तक अखराजात के गोशवारे जमा करा सकते हैं। इंतखाबात में 6 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से में आई। तहरीक इंसाफ ने 5, जमीयत उलमा इस्लाम फे ने 3, जबकि जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी एक नशिस्त हासिल करने में कामयाब हुई। इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन 14 रोज में जारी करेगा। नोटिफिकेशन के बाद आज़ाद उम्मीदवारों किसी सियासी जमात में शमूलियत के लिए 3 दिन की मोहलत दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कबायली अजला में पुरअमन इंतखाबात को अहम कामयाबी करार दे दिया है। कहते हैं तहरीक इंसाफ अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करेगी। उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी किया। 20 तारीख को एक हिस्ट्री बन गई है और अल्हम्दुलिल्लाह जो टास्क हमें दिया गया था, सूबाई हुकूमत को दिया गया था मर्जर के हवाले से, जमहूरियत पसंद लोग हैं वो, तो मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कबायली इलाका जात के लोगों को कि वो निकल आए। 20 तारीख को उन्होंने अपने वोट कास्ट किए, बल्कि हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारे बच्चे भी निकल आए और उन्होंने भी अपना वोट इस्तेमाल किया। जो इलेक्शन के रिज़ल्ट है आपके सामने है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन था। सूबाई हुकूमत ने उसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं किया। अगर हम इंटरफेरेंस करते तो रिज़ल्ट कुछ और होता। जिस तरह पार्टिसिपेट किया तो ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है कि जो एंटी मर्जर थे और वो समझते थे कि मर्जर नहीं। मामू और भांजे में कौन जीतेगा, घोटकी के हल्का NA 205 में दंगल कल सजेगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से कबीले के सरदार मोहम्मद बख्श खान महर को मैदान में उतारा गया है। उनका मुकाबला GDA के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार और मोहम्मद बख्श महर के भांजे अहमद अली खान महर से है। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग अमले को सामान की तरसील शुरू कर दी गई है। हल्का NA 205 में 3,60,875 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली सोमरो से। मोहम्मद अली, बताइएगा इंतजामात के बारे में। जी बिल्कुल, कल जो ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, घोटकी के NA 205 ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, उस हवाले से जो है डिग्री कॉलेज घोटकी से जो है सामान की तमाम तर पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील का काम जो है वो शुरू हो चुका है। इस हवाले से मैं आपको मज़ीद आगाह करता चलूँ। हल्का NA 205 घोटकी के NA 205 पर वैसे तो 9 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं होने वाले इंतखाबात में, लेकिन जो कांटे का मुकाबला है वो मामा भांजे में है। तो मामा जो है चीफ सरदार मोहम्मद बख्श खान महर बिरादरी का चीफ सरदार हैं, जबकि उनके भांजे जो हैं अहमद अली खान आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो चीफ सरदार हैं वो पीपल्स पार्टी की टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं आपको इस हवाले से मजीद आगाह करता चलूँ कि जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले उनके भांजे हैं, वो जो खाली निशस्त हुई थी हल्का NA 205 की घोटकी की, तो वो चीफ सरदार अली मोहम्मद खान महर के साहबजादे हैं। इस हवाले से आपको मजीद आगाह करता चलूँ कि NA 205 पर जो रजिस्टर्ड वोट हैं वो 3,60,875 हैं। 875 है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका अपडेट कर रहे थे मोहम्मद अली सोमरो। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स।
मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस पर याल तालपुर की जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। साबिक सदर को 19 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत। सखर में 3 भाइयों समेत 6 लापता बच्चों की तलाश जारी। 13 साल इब्तिसाम की लाश लाड़काना के करीब दरियाए सिंध से मिल गई। रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। मजीद 41 पैसे महंगा। 160 रुपये 60 पैसे का हो गया। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से खबर है, जहां पर एएसएफ की एफआईए एहलकार के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एएसएफ ने स्मगलर्स के सहूलतकार एफआईए एहलकार मोहम्मद वकास भट्टी को रंगे हाथों पकड़ लिया। वकास भट्टी ने दुबई से आने वाले मुसाफिर तौहीद से बाथरूम में मोबाइल फोन से भरा बैग लिया। मुलजिम मुसाफिर तौहीद का बैग इंटरनेशनल अराइवल से बाहर ले जा रहा था। एफआईए एहलकार की तलाशी पर बैग से 60 कीमती स्मार्टफोन बरामद हुए। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें इस खबर के बारे में कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एएसएफ ने एफआईए एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की। एएसएफ ने स्मगलर के सहूलतकार एफआईए एहलकार मोहम्मद वकास भट्टी को रंगे हाथों पकड़ लिया। वकास भट्टी ने दुबई से आने वाले मुसाफिर तौहीद से बाथरूम में मोबाइल फोन से भरा बैग लिया था। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खालिद चौधरी से। खालिद, बताइएगा इस बारे में। हाँ जी बिल्कुल, एएसएफ ने जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आज एक कार्रवाई के दौरान एफआईए एहलकार वकास को गिरफ्तार किया है। बताते चलें कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस एहलकार की मशबूह हरकत को देखते हुए एएसएफ ने ये कार्रवाई की, जिसके नतीजे में जो है उसके पास जो बैग था उसकी तलाशी ली गई, तो उसमें से 60 कीमती मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। और इस हवाले से जब देखा गया तो तमाम तर शवायद के नतीजे में मुसाफिर जो एक बाहर से बैग लाया था उसको उसने वसूल किया था और उसको लेकर वो अराइवल से बाहर जा रहा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी आपका। सखर से खबर है, जहां पर 3 भाइयों समेत 6 बच्चों के लापता होने में से एक बच्चे की लाश लाड़काना के करीब दरियाई सिंध में केटी मुमताज के मकाम से मिल गई है। वालिद ने 13 साला बेटे इब्तिसाम की शिनाख्त कर ली है। इसी पर हम बात करेंगे सिबगतुल्लाह से। जी सिबगतुल्लाह, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये 4 रोज कबल जो है 3 सगे भाइयों समेत 6 बच्चे जो है वो दरिया सिंध में नहाते हुए डूब गए थे, जिनकी तलाश जो है जिले इंतजामिया समेत तमाम रेस्क्यू इदारे दरिया सिंध में कर रहे थे। लेकिन आज जो है लाड़काना के करीब केटी मुमताज बंदर है, वहां से एक बच्चे की लाश मिली जो कि नाकाबिल शनाख्त थी। उसी हवाले से फिर जब सखर से इनके वर्षा को भेजा गया तो उसके एक वालिद जो है अनीसुर रहमान, उसने अपने बेटे की तस्दीक कर ली है कि ये उसका बेटा 13 साल एहतसाब है जिसकी ये लाश है। मुर्सा जो है लाश को लेकर तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद सखर रवाना हो चुके हैं। जी सखर रवाना हो चुके हैं। शुक्रिया आपका सिबगतुल्लाह। डेरा इस्माइल खान में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले खुदकुश हमले की एफआईआर थाना सीटीडी में दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में नामालूम मुल्जिमान को नामजद किया गया है। डेरा इस्माइल खान के डीएचक्यू अस्पताल में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले खुदकुश धमाके की एफआईआर थाना सीटीडी में दर्ज की गई। थाना कैंट के एसएचओ फजलुर रहीम की मुद्दईयत में दर्ज होने वाली एफआईआर में नामालूम मुल्जिमान को नामजद किया गया है। एफआईआर में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल की गई हैं। डेरा इस्माइल खान पुलिस के मुताबिक धमाके की तहकीकात सीटीडी और पुलिस मुश्तरका तौर पर कर रही है। अमनो अमान की हालत बेहतर हो जाए तो मुल्क तरक्की करना शुरू हो जाएगा। निज़ाम ठीक होगा तो दूसरे ममालिक के लोग सरमायाकारी करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के जमानत के केस के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस कासिम ने कहा कि हुकूमत को पुलिस के निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। पुलिस के निज़ाम को ठीक करने के लिए तमाम पुलिस ऑफिसर्स को फारिग करके नए ऑफिसर्स को तैनात करना चाहिए। CCPO लाहौर BA नासिर ने अदालत को बताया कि पंजाब में 50,000 पुलिस ऑफिसर और अहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयां की गई हैं। जबकि अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर ने अपनी अहलिया की जानिब से लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं सच्चा हूं, अहलिया ने कीचड़ उछाड़ा है। मोहसिन अब्बास ने थाना डिफेंस में बीवी के खिलाफ दरखास्त भी जमा करा दी। रिपोर्ट। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीवी को झूठा और खुद को सच्चा साबित कर डाला। कहते हैं मुझ पर इल्जाम है बीवी को रोज मारता था। ऐसा है
तो कोई मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की? वो 4 साल मेरे हाथों इतना पिटती रही, जो कि 4 साल हम साथ नहीं रहे, पहली बात, तो कोई मेडिकल रिपोर्ट आज तक रिपोर्ट नहीं हुई। अदाकार मोहसिन अब्बास का कहना था इन पर 1 करोड़ या 50 लाख लेने का इल्जाम भी गलत है। अगर सच है तो सबूत फराहम किए जाएं। तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाकर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने वो मुझे 50 लाख रुपए दिए थे। 50 लाख रुपए एक बड़ी अमाउंट होती है। उन्होंने घर में तो रखे नहीं होंगे, वो किसी बैंक से निकाले गए होंगे, उसकी कोई रसीद होगी। वो उन्होंने, क्योंकि वो एक तो होते बाहर हैं स्पेन में शायद, तो उन्होंने वहाँ से भेजे होंगे, उस भेजने की, उस उनके बैंक में ट्रांसफर होने की कोई रसीद होगी, इनके उस बैंक से निकलवाने की 50 लाख कोई रसीद होगी, कोई चीज़ तो दिखाएं। फातिमा सुहेल के जवाब में मोहसिन अब्बास ने भी लाहौर थाना डिफेंस में दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त में कहा गया फातिमा घर की सीढ़ियों से स्लिप हुई, जिससे उसे मामूली खराश आई थी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली मिर्जा के साथ हाफिज महबूब अली, न्यू न्यूज़ लाहौर। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों की हालत तबद्दी, गार्ड्स की जानिब से मरीजों के लवाहिकीन पर तशद्दुद का सिलसिला न रुक सका। अलाइड अस्पताल के गार्ड ने खातून पर तशद्दुद किया। इस बारे में मजीद तफसीलात भी जानेंगे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में ये सिलसिला जारी है। गार्ड्स की जानिब से मरीजों के लवाहिकीन पर तशद्दुद हो रहा है। अलाइड अस्पताल के गार्ड ने खातून पर तशद्दुद किया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे वक्कास शिराज से। वक्कास, क्या वजह बताई जा रही, क्यों तशद्दुद किया गया? जी बिल्कुल, लाइट हॉस्पिटल में ये पहला वाकया नहीं, आए रोज ऐसे वाकयात उठमा हो रहे हैं। जो गार्ड्स की जानिब से जो लवाहिकीन उनके जो आते हैं मरीजों के, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। आज भी ये खतून टेन्योर से अपनी वालदा के साथ आई थी मेडिसिन लेने, बाइट जो है कुछ चीज़ लेने गई, तो जब वापस आने अंदर जाने को कहा तो गार्ड ने मना कर दिया। जब थोड़ी तलख कलामी जिसका जो है गार्ड ने उसे धक्के दिए, उसके बाद उसने दरवाजे के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। गार्ड ने उसको दरवाजे में हाथ देकर उसे मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर खतून ने का यही कहना है कि मैंने दरख्वास्त भी दी है MS को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। हर रोज ऐसे वाकयात जमा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस की जानब से भी कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं अपनाई जा रही कि जो गार्ड जो है वो मरीजों, उनके लवाहिकीन को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नजर आए। अब मरीजों का यही कहना है कि हुकूमत जो है, ये तब्दीली सरकार, जिन्होंने कहा था सरकारी अस्पतालों की सूरत को बेहतर बनाया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ दावे तक मौजूद हैं। अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती, ना ही कोई ऐसा हिकमत अमली तैयार की गई है जो गार्ड के गुंडागर्दी इसको खत्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वक्कास शिराज आपका। एक और खबर है, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के कराची के बड़े हॉस्पिटल NICH के लिए बड़े फैसले। वज़ीर आला सिंध ने 43 काबिल मुलाजमीन के अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी है। NICH के लिए 150 नई आसामियां पैदा करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध ने NICH का पहला सैटेलाइट थर पे कायम करने की हिदायत दी है। इजलास में मुशीर इत्ताद मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह, वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो, सेक्रेटरी खजाना नजम शाह, डायरेक्टर NICH सैयद जमाल रजा, एडिशनल सेक्रेटरी फयाज चतोई भी शरीक हुए। यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ मौसम की खबर यह है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मानसून बारिशों के नए सिलसिले की भी पेश गोई की गई है। आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, कोहाट, कोयटा, योग, कल्लात, मीरपुर खास, हैदराबाद, हजारा, लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी डिवीजन, इस्लामाबाद और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। फैसलाबाद में तेज धूप ने गर्मी की शिद्दत को बढ़ाया तो शहरी अब्र रहमत बरसने की दुआएं करने लगे। मौसम की मजीद क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे जवेरिया नसीर से। जवेरिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई रोज़ की तरह आज भी फैसलाबाद का मौसम शदीद गर्म है। जैसे ही सुबह तेज़ धूप निकली, हपस में इजाफा हो गया, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया, शहरी परेशान हाल दिखाई देते हैं। बरसात का मौसम स्टार्ट होते ही हपस का जो है वो आलम होता है। शहरी हर तरफ जो है वो सायादार जगहों का इंतखाब करते हैं ताकि सायादार जगह में बैठ कर जो है वो गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज का दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। शहरियों का यही कहना है कि कभी तो काले बादल जो है वो छा जाते हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, तो कभी तेज़ धूप जो है वो निकलती है, बारिश नहीं होती। बरसात के इस मौसम में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहता है। मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश की पेशेनगोई की गई है, लेकिन अंदरूनी शहर जो है वो बारिश नहीं है, तेज़ धूप है। इसी तरह शदीद गर्मी जो है वो हबस का मौसम जो है वो बरकरार रहेगा। शहरी अपने रहमत बरसने की दुआएं कर रहे हैं ताकि हबस के मौसम जो इससे उन्हें निजात मिल सके और खुशगवार मौसम को वो भी इंजॉय कर सकें।
कल्लर कहा कि सिर्फ एक झील सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद कल्लर कहार का रुख करती है। मजीद जानेंगे स्वेक झील पर मौजूद अपने नुमाइंदे जाहिद मुनीर से। मौजूद हूँ स्वेक झील पे, जो कल्लर कहार से 10 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ पर काफ़ी पहाड़ी दुश्वार गुजार रास्ते से होके आना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट की इतनी सहूलत नहीं, कम से कम आधे घंटे के बाद यहाँ पे दुश्वार गुजार रास्तों से होके पहुँचा जाता है। यहाँ पर सयाहों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर मैं झील के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ एक सयाह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस झील के हवाले से क्या कहना है। जी माशाल्लाह, ये बहुत ही खूबसूरत झील है। यहाँ पे दुश्वार गुजार रास्ते हैं, तकरीबन 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा रास्ता जो है इंतहाई कठिन है, जिसे हुकूमत पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि वो रास्ते को फौरी तौर पे तामीर किया जाए। और यहाँ पे पिकनिक के लिए जो भी लोग आते हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सियाहत के फ़रोग के लिए नारे तो बहुत लगाती है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करती। यहाँ पर स्वेक ली पे जो है वो सियाहत के लिए होटल्स का और यहाँ पर झील पर पहुँचने के लिए रोड्स का इंतज़ाम करे। गिजर के इलाके यासीन की ट्राउट मछली का कोई सानी नहीं। दरियाओं, चश्मों, नदी नालों में कुदरती ट्राउट के साथ साथ कई फिश फार्म भी मौजूद हैं, जहां से मुल्क भर ट्राउट सप्लाई की जाती है। सलीम शीरी हमें रिपोर्ट करेंगे। गिजर की सब डिवीजन यासीन की ट्राउट मछली कोई सानी नहीं रखती। ट्राउट के साथ साथ इलाके में कई फिश फार्म भी मौजूद हैं। सब डिवीजन यासीन से सालाना करोड़ों रुपए मालियत की ट्राउट मछली मुल्क भर में सप्लाई की जाती है, जिससे सैकड़ों अफराद का रोजगार मुंसलिक है। नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे से फिश फार्म्स को शदीद खतरात हैं। दूसरी जानिब महकमा फिशरीज गिलगित बल्तिस्तान के अदम ताउन के 22 फिश फार्म मालिकान परेशान हैं। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों की लपेट में आ गए हैं। कहीं बारिशों और सैलाब से तबाही तो कहीं गर्मी लोगों की जानें निगलने लगी है। भारत, अमेरिका और पुर्तगाल कुदरती आफात की जद में आ गए। भारतीय रियासत आसाम, हिमाचल प्रदेश और बिहार में सैलाब में तबाही मचा दी। 57 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। 45 अजला पानी में डूब गए। लाखों अफराद बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। 170 अफराद लुकमाए अजल बन गए। अमेरिका में रिकॉर्ड टूट गया। कहर बरसाती गर्मी 6 जिंदगियां निगल गई। न्यूयॉर्क में हीट वेव के बायस इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हॉस्पिटल्स में भी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। उधर पुर्तगाल के इलाके कैस्टेलो ब्रांको के जंगलात में लगी आग ताहाल बेकाबू है। 9 फायर फाइटर्स और 12 शहरी शदीद जख्मी हो गए। 800 फायर फाइटर्स और 13 हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। करीबी इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। क्रिकेट का जनून वादी कैलाश में पहुंच गया। साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक ने कैलाश के संगलाख पहाड़ों पर नौजवान प्लेयर्स को क्रिकेट खेलते देखा तो उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। गोजरा का रुख करेंगे, जहां पर दीदा सेब और मुख्तलिफ डिजाइन के चमड़े और शनील के कपड़ों से खुद से हाथों से तैयार किए जाते हैं। दिलकश और रंग बिरंगे खुस्सों पर देखते हैं गोजरा से आबिद सिंधु की रिपोर्ट। पहना तो निखार कैसा, गोजरा के दीदा जेब खुद से खुसूसी तवज्जो का मरकज बन गए। खवातीन और मर्द और बच्चे सभी शौक से पहनते हैं। फी जोड़ा 150 से 350 रुपए में फरोख्त होता है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में सप्लाई किए जाते हैं। कारीगरों का कहना है रिवायती तरीके से खुद से बनाते हैं। शहरी शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में पहनकर खूब इंजॉय करते हैं। देसी तरीके खुद से तैयार किए जाते हैं जी। चमड़े दे प्योर चमड़े दे देसी चमड़े दे तैयार किए जाते हैं ते दूसरा बड़े पसंद किए जाते हैं। ब्याह शादियां दे बड़े शौक नाल पहने जाते हैं। खुस्सा पंजाबी सकाफत की कदीम पहचान है। अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में शहरी इसे शौक से पहनते हैं और जिंदा रखे हुए हैं। कैमरामैन अरसलान अशरफ के साथ आबिद सिंधु, न्यू न्यूज़, गोजरा।
इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए निया।